दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। Our God is great. अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say. यीशु तू जिंदा है, we give you praise. तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया। आपका स्वागत है आज के चर्च में। आप सब कैसे हो? क्योंकि आप सब आशीषित रहे। हम प्रार्थना करेंगे मसीह के कलीसिया के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, चर्च आगे बढ़ रहा है विजय और सामर्थ्य। अब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे।
Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan ore kasavrikantoshkan. Ore kasavrikantoshkan ore balaboskel bandilo ore kasavrikantoshkan. Ore balaboskel bandilo bodhiko bodhikre. Ore kasavrikantoshkan. इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? का गुलाब तूफान के बीच में तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो गीला का बाण, तू है वो शारों का गुलाब, तू है तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया,
तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आज के रैप्सोडी में। ये समय है रैप्सोडी पढ़ने का, तो आप मेरे से रैप्सोडी पढ़ सकते हैं। आज रविवार 25 जुलाई। आज का विषय है दूसरों की भी चिंता करो, जिसे हम बाइबल से पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 अध्याय का 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। प्रभु यीशु ने एक भले सामरी की कहानी सुनाई, जो सड़क पर पड़े एक अजनबी से मिला और उसकी मदद की। लुटेरे ने उसे लूट लिया और सड़क के किनारे छोड़कर चले गए थे। जो कोई उस सड़क से गुजरा और देखा उस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, उनमें से मदद करने के लिए कोई नहीं रुका। केवल वह सामरी व्यक्ति रुका। सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखकर उस पर तरस खाया और उसकी मदद की। वह उसे अस्पताल ले गया और उसकी देखभाल और इलाज के सभी बिलों का भुगतान किया। हालेलुया। सामरी की तरह दूसरों के विषय पर में चिंता करो, और यदि आप कर सकते हैं तो मदद करने में इच्छुक बनो। वचन अध्ययन लूका 10वां अध्याय का 33 से 37वां वचन। आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, मुझे अपने प्रेम, करुणा और बुद्धि से भरने के लिए, जो कि न केवल मेरी मदद के लिए है बल्कि दूसरे के लिए भी है। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू हमारे साथ रैप्सोडी पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और
जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन ना हाई फाई लेके कहिए आपका स्वागत है। और ये हमारा कौन सा महीना है? आनंद का महीना है। वाओ, ग्लोरी, हालेलुया। मुझे पता आप सब बहुत उत्साहित हैं। और आपको याद है पिछले 2 रविवार से हम किसकी कहानी सुन रहे हैं? किसको याद है? हाँ, हम योना की कहानी सुन रहे हैं ना। और कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। आपको याद है हमने क्या बात किया था पिछले बार? ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। पिछले योना की कहानी हमने शुरुआत की थी और हमने देखा था किस तरह से योना, जो कि एक इजरायली था और वो एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का जन था। और परमेश्वर ने योना से कहा था कि वो निनवे नाम के शहर में जाए और वहां के लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। क्योंकि वहां के लोग क्या थे? बहुत ही बुरे थे, उनके काम बहुत ही बुरे, वो दुष्ट हो गए थे और परमेश्वर उनसे क्रोधित थे और न्याय का समय उनके ऊपर आ चुका था। पर जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर कैसे हैं, कि प्रेम करने वाले, दयालु, कृपालु परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर उन्हें नाश नहीं करना चाहते, उन्हें बचाना चाहते थे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था? कि कोई वहां पर जाए और उन्हें सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। ताकि वो सुने और उनका मन फिरा हो, वो अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग सके और परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। परमेश्वर उन्हें क्षमा करना चाहते, उन्हें नाश नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था? कि कोई जाए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? योना से कहा कि जाओ, निनवे जाओ और वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पर जब परमेश्वर ने योना से कहा निनवे जाने के लिए, आपको पता है योना ने क्या किया? वो उठकर योपा नाम के नगर को चला गया और वहां पर उसने तार्शिश जाने का भाड़ा दिया और तार्शिश जाने के लिए उस जहाज पर वो चढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना चाहता था, छुप जाना चाहता था। हालेलुया। वो निनवे नहीं जाना चाहता था।
इसलिए उसने क्या किया, योपा नगर में जाकर तार्शिश के लिए जहाज ले लिया। उसने कहा कि मैं तार्शिश चल रहा हूँ, मैं निनवे नहीं जाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे पर योना ने ऐसा क्यों किया? वो निनवे जा सकता था, सुसमाचार का प्रचार वहां पर कर सकता था, उसे भागने की क्या जरूरत थी? क्या वो निनवे के लोगों से डरता था? अगर आप पुराने नियम में योना के अध्याय को आप पढ़ सकते तो आपको पूरी कहानी पता चलेगी। तो उसमें योना ने बताया कि वो निनवे क्यों नहीं जाना चाहता था। जैसे मैंने आपको बताया कि निनवे के लोग क्या थे, बहुत बुरे, और योना इजराइल के लोग और निनवे के लोग दोनों क्या थे, शत्रु थे एक दूसरे के। और योना ने क्या सोचा कि अगर वो वहां पर जाएगा, सुसमाचार का प्रचार करेगा, लोगों का मन फिराव हो जाएगा, परमेश्वर से माफी मांगेंगे और परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा। तो सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बुरे लोग हैं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए, इनका तो न्याय होना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और वो जहाज पर बैठ गया। और मुझे बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र में एक तेज हवा भेजी और समुद्र में एक बहुत ही तेज तूफान आया, इतना तेज कि ऐसा लगने लगा कि जो जहाज है वो टूट जाएगा, डूब जाएगा। और जो भी लोग जहाज में थे वो सब लोग घबरा गए कि ये अचानक से क्या हो गया, इतना इतना तेज, इतना भयंकर तूफान कहाँ से आ गया। और सब लोग जो वहां पर थे वो अपने अपने प्रभु से क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वो जहाज का जो सामान था वो उठा उठा कर जहाज से बाहर फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए और जहाज ना डूबे। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तूफान इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जहाज ही टूट जाएगा। और ये सारे समय योना पता है कहाँ था? वो जहाज के नीचे अंदर जाके क्या कर रहा था? सो रहा था। और ऊपर सब लोग जहाज में क्या थे? परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गई, क्या हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे कि वो जहाज को संभाल सके, कंट्रोल, नियंत्रित कर सके कि तूफान से कैसे उसको बचाए। पर तूफान इतना 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 भयंकर था कि जहाज का बचना और जहाज में जो लोग थे उनका बचना बहुत ही कठिन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि जिस तरह से परमेश्वर ने योना को भेजा है, परमेश्वर ने हमें भी भेजा है। और जिस तरह से योना परमेश्वर से भागा, याद रखें, एक परमेश्वर की संतान के रूप में हमें कभी भी परमेश्वर से भागना नहीं चाहिए। और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर इतना क्रोधित था कि योना को सजा दे रहा था? नहीं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर कौन है? एक प्रेम करने वाला पिता है, वो दयालु है, वो कृपालु है। वो नहीं चाहता था कि योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर कुछ और करे। परमेश्वर को पता था कि अगर योना परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं करेगा तो उसे ही परेशानी होगी। परमेश्वर उसे बचाना चाहते थे। यही कारण है कि परमेश्वर उसके पीछे कहां पर गए? उस जहाज पर गए। उसे मारने के लिए नहीं, पर उसे बचाने के लिए। हालेलुया। जो गलती वो कर रहा था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो और गलतियां करे। परमेश्वर उसे सही रास्ते पर लाना चाहता था। और देखिए, जब योना इस तरह से भागा है ना, और उस जहाज पर चढ़ गया, तो उसके अकेले की वजह से जहाज पर जितने भी लोग थे सबकी जान क्या हो गई? खतरे में आ गई है ना, सब खतरे में आ गए। वो अकेले ही खतरे में नहीं था, पर जहाज पे जितने भी लोग थे सब क्या हो गए? खतरे में आ गए। परमेश्वर चाहता था कि योना वो करे जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी भलाई उसी में थी। याद रखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था, है ना, परमेश्वर की संतान के रूप में हम क्या है? परमेश्वर के सिपाही है। हालेलुया। और परमेश्वर कौन है? हमारा कमांडर है। और जो कुछ भी कमांडर कहता है, सिपाही क्या कहता है? यस सर। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर की हर एक बात को मानना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना, वही हमारे लिए सबसे क्या है?
बेस्ट है। याद रखिए परमेश्वर को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और परमेश्वर हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर हमेशा हमें सही चीजें करने के लिए ही बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की इच्छा, पिछली बार भी मैंने बताया, परमेश्वर की इच्छा हम कहाँ से जान सकते हैं? परमेश्वर के वचनों से। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने कुछ हमें करने के लिए कहा है, याद रखिए हम उसे कर सकते हैं, और उसे करने में ही हमारी क्या है? आशीष है। याद रखिए हर वो काम जो हम करते हैं उसमें हर काम में आशीष है। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और उन सारे आशीषों का लाभ उठाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन को करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर की संतान के रूप में हमें कभी भी परमेश्वर से नहीं भागना है। हालेलुया। हमारा आशीष किसमें है? परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानना और उसे करना। हालेलुया। याद रखिए हमारा परमेश्वर कैसा है? भला है, प्रेम करने वाला है, क्रोध करने वाला नहीं, दंड देने वाला नहीं, पनिश करने वाला नहीं। तो जो कुछ भी करता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। भले या हमें उस समय समझ में ना आए, पर वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया, है ना? परमेश्वर को भविष्य पता है। तो कभी भी हिचकिचाइए मत, जो भी परमेश्वर ने कहा है उसे कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हमें करने के लिए कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर तूफान आ गया है ना, पूरा नाव हिल रहा है, अभी नाव टूटने की कगार पर है। इतना तेज और भयंकर तूफान है। हालेलुया। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगले रविवार को हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। हालेलुया। तब तक अपने दोस्तों को जरूर बताइए योना की कहानी में अभी क्या हुआ है ना, कहाँ तक पहुंचे। हालेलुया। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जाइए और सबको बताइए कि यीशु उनसे क्या करता है? प्रेम करता है ना? परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवनों से कि हम हर जगह जाए और क्या करें? सबको बताए कि यीशु उनसे क्या करता है? प्रेम करता है। याद रखिए यीशु के आने का समय क्या है? बहुत नजदीक है। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। अपने सारे दोस्तों तक, है ना, आपके रिश्तेदार, जहां पर भी आपको लोग मिलते, सबको बताइए जीसस लव्स यू। पर यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और अगले रविवार को हम देखेंगे कि कहानी में आगे क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव! हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। आपके वचन से सीखने के अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा हृदय आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है और मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अनुसार चलता हूँ। मैं वह सब करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं परमेश्वर के वचन का करता हूँ। मैं परिणाम उत्पन्न करता हूँ। मैं अपने दुनिया को समाचारी सुनाता हूँ और उनकी आत्माओं को बचाता हूँ। मैं मसीह का राजदूत हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी है, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर
आंखों को बंद कर कर मेरे साथ इस प्रार्थना को आपको बोलना है। याद रखिए, इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। तो तैयार है? चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा नया जन्म हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आज से यीशु मसीह आपके दोस्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जीवन आज आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु। मैं शैतान के हाथ को इनके जीवन के ऊपर से काटने में कहती हूँ, शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ, आशीषित है प्रभु और एक आशीष है, ये सुरक्षित है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। उनके जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो समय है जहां पर हम अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। बैंक ट्रांसफर के द्वारा आप अपने भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। धन्यवाद। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण करने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे हमने दिया है उसकी बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी प्रभु। लोग नाक दबाकर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का नियम इसके ऊपर काम कर रहा है। राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार है, ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। तो जहां पर भी परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, दैवीय स्वास्थ्य। उसकी इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। रिब्रेकांतर गोस्की तलबा शतांतर बोंतर निवात्राकस्की तरबो शांतरे रुब्रेकला बांतर बो सीतर बुरकाम त्राकस्की तलबो प्रताप त्राकस्की तरबो शांतरे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के जो ये प्रोग्राम को देख रहे थे। आज जो भी बीमारी है मैं उस बीमारी को जाने के लिए बोलता हूँ, उस दर्द को जाने के लिए बोलता है। कमांड एवरी सिकनेस, every infirmity to live in the name of Jesus. Basantala bokrati. Rima mama kalagos kitala bondala baki bo sitrala bokrata की आंतला बो सीत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ
इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के कण-कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे। बीमारी के लिए कोई जगह नहीं। जैसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर काम करे, इनको चंगा करने के लिए। हालेलुया। ओ हेल्थ इज रिस्टोर्ड। डीबो साकी अलखुम सदे अभियंता के बोस्की तलबो कता की बरिकाम त्राक स्कूत्रली बाम तरबो सान तरबो प्रता प्रजी। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर का हर एक अंग सही से काम करे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य रुको शांत ने में लिखा तरह शांत दोस्त की प्रभु। ओ परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ छूने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हमें कहती है स्वस्थ है और चंगे है प्रभु। धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। हमें फोन करके या मैसेज करके जरूर बताएं कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया। हमने कितना कुछ किया है ना। वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं की, गाना गाया, डांस किया, योना की कहानी हमने सुनी। हालेलुया। जो कि अभी भी खत्म नहीं हुई है ना, अभी भी कहानी बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने दोस्तों के साथ जरूर उन सारी चीजों को शेयर करें जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम के लिंक को शेयर करें, उन्हें बुलाकर दोबारा इस प्रोग्राम को जरूर देखें। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सारी चीजों के लिए जो आज हमने सीखी। परमेश्वर के प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देंगे। जहां कहीं पर भी है खड़े हो सकते हैं मेरे साथ, हाथों को स्वर की ओर उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, हर व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, ये सुरक्षित है प्रभु। हाँ प्रभु, ये आशीषित है और एक आशीष है। सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम करे, हर काम को इस सर्वश्रेष्ठता के साथ कर दे। धन्यवाद परमेश्वर के जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैले। ये निर्भीक है और निर्भीकता के साथ आपके सुसमाचार का प्रचार हर जगह करे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद इनके जीवनों से आपकी महिमा हो, आपका राज जागे बढ़े प्रभु। धन्यवाद। ये इनका परिवार सुरक्षित है, कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। चलिए आखिर की प्रार्थना हम करेंगे, मेरे साथ बोल सकते हैं। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.